When you're in sync with a director and आपने काफी समय बिताया बना रहे ये, you straight go on to another set, another film, another project. Yeah. Then even you're not in sync with a filmmaker, Yeah. but sometimes the product can be amazing, Yes. right? कि कुछ एकदम जबरदस्त Yes, film बन yes. जाएगी. How do you change in that situation? It's very simple example. If आपके घर की शादी है, Hmm. पागलों तरह नाचते हो, किसी और के घर में परफॉर्म करने जा रहे हो पैसे लेके, हाँ, तो भी करते हो वो सब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं सिंक में रहूँ। बिल्कुल, हाँ. of मेरी course. पूरी कोशिश रहती है, चाहे मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे रहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उस यूनिट का हिस्सा बनूँ। जी. पर कई बार आप मिसफिट होते हो। अभी आइडिया था कि टू टेक द सेम स्टोरी अहेड, और या हमेशा से प्लान सेकंड सीजन का जब आइडिया आया था कि न्यू सिचुएशन, न्यू प्लेस? There was never a plan to take the First season same characters ahead. Okay. It's a really long process making a course. show. You know, first season took 4 years. Second one took 5 years. Wow. क्या होता है ना, आप खुद ही पक जाते हो. You know, you want freshness, you want something new for yourself. Right. जी, आपने इतने रोल्स किए हैं, काफी रोल्स इतने ऑडियंस से रिलेट हो जाते हैं, ये हो जाता है या आपको पता है करने के टाइम कि ये रोल तो क्लिक होगा ही होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई एक्टर इतना श्योर हो सकता है कि ये तो मतलब ऐसा नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि श्योर होते हो वो होता भी नहीं है. एग्जैक्टली, जब आप जेन्युइनली होता है ये तो अरे आप फाड़ देंगे, वही सबसे खराब होता है. What do you have to tell about directing him? I've been watching, आपके मैं 2-3 दिन से इंटरव्यू देखे जा रहा हूँ. I've been एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि आमिर also called you one day to just discuss acting. This is that must be a great moment firstly for you. Right. So tell, and there's Jaideep Palawat on camera and you're behind. What is that like? For Avinash and I, a lot of times when we were in doubt, okay, ये वाला scene कैसे करेंगे, ये work करेगा कि नहीं, and then we would just look at each other and say, अरे यार जयदीप संभाल लेगा, and we would just move on, say हाँ, he will figure it out. Let's not waste our time thinking about it. So I mean, he needs very minimal guidance and instructions, very minimal. Wow. सुदीप, जयदीप, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा. मैं ऐसा किसी से नहीं मिला हूँ जो ये शो का फैन नहीं है, तो आई एम अ बिग फैन, सो कांट वेट फॉर दिस. सो थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फर्स्टली. थैंक यू. सबसे पहले जब सेकंड सीजन की बात आती है, कुड यू टेल अस हाउ डज इट वर्क? डज द प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म टेल यू कि ये बहुत चला है, अब इसका सेकंड सीजन तो बनाना ही चाहिए? Or when you are filming, the story is such that it needed a second season? Story was such that it could have had another season. Okay. Prime Video was very keen on doing a second season. And this was before the show released. Okay, before this. So I mean, the writing of it was, the development of it was greenlit even before it came out. That was after they saw the edits. They were keen to do a second season. Okay. I was not sure about it, but I wrote it as a standalone piece. And for me, the story was complete. But in the making of the first season, something changed. In the making of the first season, the experiences that we all had, and I felt like we were discussing a little earlier, my relationship with Hathiram was not over, and I wanted to explore that character a little more. And it was really that urge that took me back to the drawing board. वाओ. जयदीप, आपने इतने रोल्स किए हैं, काफ़ी रोल्स इतने ऑडियंस से रिलेट हो जाते हैं, ये हो जाता है या आपको पता है करने के टाइम कि ये रोल तो क्लिक होगा ही होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई एक्टर इतना श्योर हो सकता है कि ये तो मतलब ऐसा नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि श्योर होते हो वो होता भी नहीं है. एग्जैक्टली, जब आप जेन्युइनली होता है ये तो अरे आप फाड़ देंगे, वही सबसे खराब होता है. तो नहीं, आई थिंक वो अच्छी लिखाई, अच्छी टीम और ठीक से बनाया हुआ काम जब पहुंचता तो मुझे लगता है कि वो रिलेट कर ही लेते हैं लोग उसके साथ. ये कैरेक्टर इतना सबको पता है, मीम्स बनते हैं, मीम्स आते हैं इसके, इतने पॉपुलर हो गए. जब कोई आपकी छवि के इतना नज़दीक हो जाता है कभी कभी, क्या आपको आगे के रोल्स भी इसके वजह से आता है कि यार ये, और फैंस भी जब आपके पास आते हैं, डू दे थिंक कि हाँ ये ऐसा ही होगा रियल लाइफ में भी? डज एनीथिंग रब ऑफ फ्रॉम द कैरेक्टर टू योर रियल लाइफ? हाँ, लेकिन वो अलग अलग काम के साथ होता है. ओके.
मुझे लगता है कि जिसका जो फेवरेट है ना काम, वो उस नजर से आपको देखता है। जिसके लिए हाथेराम है तो आपको हाथेराम की नजर से देखेगा। किसी ने हो सकता है हाथेराम उतना पसंद ना किया तो वो उसको शायद 3 ऑफ अस ज्यादा पसंद आई हो, तो वो उस नजर से आपको देखता है। तो वो बड़ा सब्जेक्टिव मामला है। बट या उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो आपके पास रहता ही है। What do you have to tell about directing him? I've been watching आपके, मैं 2-3 दिन से इंटरव्यू देखे जा रहा हूँ। I've been एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि आमिर also called you one day to just discuss acting. This is that must be a great moment firstly for you. Right. So when there's Jaideep Ahlawat on camera and you're behind, what is that like? It's pure joy. It's pure joy to have someone of his caliber, right, performing the part, and I'm sure every director that he has worked with, every creator that he has worked with feels exactly the same. I mean, for Avinash and I, a lot of times when we were in doubt, okay, ये वाला scene कैसे करेंगे, ये work करेगा कि नहीं, and then we would just look at each other and say, अरे यार जयदीप संभाल लेगा, and we would just move on, say हाँ, he will figure it out. Let's not waste our time, right, thinking about it. So I mean, he needs very minimal guidance and instructions, very minimal. Wow. Because he's in complete command of the script. Okay. He knows his part, he knows his lines, he knows सामने वाले का part, he knows सामने वाले का lines. You can put him into the other character's shoes and say, यार ये वाला role कर लो, and he would just do that. Wow. Jaideep, how is that? Do you read the whole script? You read the other person's dialogues also? How do you remember? I have to know the world. You have to know the world. I have to know the beauty of it. That the more you know it, it's easier for me to not know them now. True. If I'm clueless कि सामने वाला का कौन है और ये क्यों आ रहा है मुझसे बात करने, I have, even if it's the character is meeting first time. That's the beauty. If I know exactly what he's gonna say and how he's gonna say or whatever, एक जो भी आपने उसको कोई ऐसा उसका खाका तैयार नहीं किया, but you know the mindset of that character. True. I don't go behind the lines because वो हो जाएंगी. वो एक मुझे लगता है कि वो thank God शायद मेरे साथ ये है कि मैं उनको पढ़ता रहता तो मुझे हो जाती है लाइन. So you would read it like a book. You would really read the whole script. Yeah, it's a story. It's every time you read it, and don't put yourself into it. There is a line for someone. Right. At least know that. Make a sense out of it. Correct. Yeah. You're not listening to it. You're not reading. सामने कोई एक्टर खड़ा होता है, आधे टाइम नहीं सुन रहे होते हैं हम उनकी बात. True. हम क्या वेट कर रहे होते हैं उनके आखिरी 4 वर्ड्स का. क्यों मिल जाए बस. एंड दैट्स द वर्स्ट पार्ट. आप कभी नहीं निभा पाओगे जो आपको निभाने के लिए दिया गया है. आपको सब पता होना चाहिए वो क्या कहने वाला है, उसके बावजूद चैलेंज ये है कि वो आपको अभी सुनाई हो रहा है, वो अभी चल रहा है. दिस इज हैपनिंग राइट नाउ, राइट हियर. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. आपके सामने ऐसा एक्टर आ जाता है, फिर आप क्या करते हो? कैसा? जो लास्ट के 4 वर्ड की वेट कर रहा है. बहुत होते हैं. वो तो उसके लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए थोड़ी. बहुत होते हैं. बट मेरा एक तरीका ये है, मतलब सॉरी नहीं होना नहीं चाहिए उस तरीके से. मतलब अगर कुछ ऐसा मुझे डिस्ट्रैक्ट हो रहा ना, तो फिर मैं अपने बेसिक्स पे जाता हूँ. तो मैं उनको ओझल कर देता हूँ अपनी आंखों से. अब वो कुछ भी करते रहे मुझे दिखाई नहीं देंगे. तो ये मुझे बहुत काम आती है टेक्निक, कि मैं कहीं थोड़ा सा उनको लगेगा नहीं कि मैं कहीं और डिफ्लेक्ट हो गया हूँ. पर मैं कुछ ऐसा कर लूंगा कि मुझे वो परेशान नहीं कर पाएंगे. देयर इज अ शील्ड. यू ऑलवेज हैव टू दैट invisible shield around you. Otherwise you are always vulnerable on the set. That's so true. While you are in a different mental state of a character, not yours, but बाहर की जो दुनिया है ना उसको पोक कर सकती है. गर्मी है, ये है, वो है, कोई उधर से चिल्ला दिया, कोई आपके सर पे खड़ा है, क्या नाम है, कटर लेके, उनकी जॉब है. तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे एक लगता है कि एक एक्टर को एक शील्ड बनानी पड़ती है कि उसके बाहर की दुनिया फिर उसको परेशान नहीं कर सके. करेक्ट. जैसे होता है कई बार कैमरे के सामने जगह ही इतनी कि यहाँ 10 लोग खड़े होना उनकी मजबूरी है. यू कांट से यार मेरी आई लाइन से हट जाओ. बेटर वो भी अपना काम कि आप अपने आप को ऐसा बना लो कि दिख ही ना रहे. वो एक बेटर सिचुएशन. This comes with time. I don't think. I think it's in you. It's in your.
मैंने बहुत सारे काफी टाइम जिन्होंने काम करते हुए देखा मैंने, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत सही हो सकता है आपको, वो डेफिनेटली वो करती हूँ। मेरा तरीका है कि मैं उनको अनदेखा कर सकता हूँ अनटिल अनलेस कोई बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन और कोई एकदम ही ऐसा कुछ डांस कर रहा है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। बट इफ यू आर स्टैंडिंग स्टिल, और स्पेशली क्लोजअप्स पे, लॉन्ग शॉट्स पे तो वैसे भी कुछ नहीं दिखता है मुझे। राइट, क्लोजअप्स पे आप डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है कोई आदमी, क्योंकि कैमरा इज सो मच इनटू योर सोल। राइट, आपका एक ग्लिच, ये थॉट का कि अगला वर्ड क्या है वो पकड़ लेगा। बिल्कुल। जो ये कह रहे थे जयदीप कर लेगा, दिस इज ग्रेट व्हेन द मेकर्स, उन्होंने लिखा था कि मैं संभाल लूंगा सर। लाइन ही आपको दे दी। दिस इज ग्रेट व्हेन द स्क्रिप्ट अच्छी है तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन स्क्रिप्ट एंड मेकर्स डोंट नो मच। सो लाइक जॉनी लीवर यूज्ड टू से कि यार मुझे लोग लेते थे और बोलते बुला दो इनको, कुछ तो कर देंगे, लोगों को हंसा देंगे, एंड बट दिस कुड बिकम अ प्रॉब्लम व्हेन द मेकर्स एंड दे डोंट नो इट, राइट? मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है इम्प्रोवाइजेशन के नाम पे ना ये बहुत फ्रॉड होता है इस मामले कि कुछ भी करो तो इम्प्रोवाइजेशन हो जाए। इम्प्रोवाइजेशन हैज टू बी विद इन द लॉजिकल क्राइटेरिया ऑफ द कैरेक्टर। ये थोड़ी कि आप कुछ भी बोलोगे तो इम्प्रोवाइज हो गया। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब बाकर करना नहीं होता है। I think it comes from this awareness that he has as an actor. There is this great spatial awareness that he has. कौन सी चीज कहाँ है सेट पे, कौन एक्टर कहाँ खड़ा है, लाइट कहाँ से आ रही है, कैमरा कहाँ है, शॉट कौन सा है, लेंस कौन सी है, he's fully aware of that. Right. So that is why he needs very little directions. Those things which these are the questions that actors ask. Yeah, true. He will come to the set and he would figure it out for himself. While you are setting up the shot, while you are discussing the blocking, he has figured it out. Okay. And he knows exactly what is going to happen. So it just makes our lives so much. So when you're taking the shot, it's not about यार इसको अब इनको सबको समझा के यहाँ तक ये जो लिखा हुआ है ये निभाना है. Now when you're on set, you're like, okay, this is, we already have this, because he has figured it out. Now how do we make it better? Right. Can we improvise it? Can we do something? What is he thinking about? We are saying यहाँ से आइए. What does he think about it? So it's just great. I really enjoy जो हम सुबह सेट पे पहुंच के जो ब्लॉकिंग करते हैं. It's लाइटिंग होने से पहले बेसिकली जस्ट सिटिंग, अच्छा ये सीन है एंड वी ऑल नो व्हाट सीन इज. इट्स नॉट कि सब स्क्रिप्ट देख रहे नो. अच्छा हाँ ये तो क्या कर सकते हैं, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से होगा, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस है. विद इन 5-7 मिनट्स इट्स ओवर. क्या अच्छा द कोरियोग्राफी इज डन. ओके, नाउ अब लाइटिंग कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. और बड़ा कभी कभी, और मैं मुझे लगता है कि बेसिक ऑब्जर्वेशन से आता है वो जो चीजें होती है कि आप अगेन अवेयरनेस थोड़ी सी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बहुत इंपॉर्टेंट. वो किसी भी फील्ड में थोड़ा सा अच्छा करने के लिए आपकी अवेयरनेस थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है. आई रिमेम्बर जैसे बोल देते ना कि हाँ वो संभाल लेगा, अगेन उनका भरोसा. पर मुझे लगता है कि कभी कभी बिकॉज वी आर सो मच इनटू सिंक, राइट, यू विल अंडरस्टैंड दैट. उस राइटिंग के साथ एक दूसरे के साथ इतने सिंक में है कि वो इतना सा इशारा भी आपको पता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे. तो देयर वाज दिस नॉर्मल सीन के हथराम कहीं घुसता है किसी ऑफिस में, उसको एक फाइल ढूंढनी है. अब इतने बड़े ऑफिस में फाइल ढूंढने तक पहुंचना इलॉजिकल नहीं होना चाहिए. ओके, आई रिमेंबर दैट कुछ तो हुआ. फैजल मियां वाज देयर. फैजल सेड कि यार ये है कोरियोग्राफ करने की कोशिश कर रहे थे, मैं सेट पे पहुंचने तो जो बाद में मुझे पता चला कि भाई बोलते यार उसको आने दो ना, वो अपने आप ढूंढ लेगा फाइल. फाइल ही तो ढूंढने, वो अपने आप ढूंढ लेगा, उसको पता है कहाँ से कहाँ जाना है. एंड दे आर लाइक ओके, फाइन. Wow, that's so interesting. When you're in sync with a director and आपने काफी समय बिताया बना रहे हैं, you straight go on to another set, another film, another project. Then when you're not in sync with a filmmaker, but sometimes the product can be amazing, right? कि कुछ एकदम जबरदस्त फिल्म बन जाएगी. How do you change in that situation? It's very simple example. If आपके घर की शादी है, पागल उतरे नाचते हो, किसी और के घर में परफॉर्म करने जा रहे हो पैसे लेके, तो भी करते हो वो सब. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं सिंक में रहूँ. बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहती है, चाहे मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे रहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उस यूनिट का हिस्सा बनूँ. पर कई बार आप मिसफिट होते हो, मैं मिसफिट होता हूँ. हो सकता है वो सब सिंक में हो, मैं मिसफिट हूँ उसमें. पर मैं, that's my job. That's why I'm hired for. So I have to make some
adjustment in my mind, in my physicality. कि Right. I will adjust myself Right. and be into their timeline, their thought process, and try to convince them with my ideas, with my thought process. And if it's working, amazing. fine. If it's not, the final call has to be your director. Director. Right. Fair enough. Either I convince you or you convince me. Yeah. And if there is a standoff, you are the boss. Right. It's your ship. It's your show also. Yeah. I can't do anything about it. Right. Lastly, to both of you, to you first, कभी आइडिया था कि to take the same story ahead, और या हमेशा से प्लान सेकंड सीजन का जब आइडिया आया था कि न्यू सिचुएशन, न्यू प्लेस? There was no, there was never a plan to take the First same season same characters ahead. Okay. It's a really long process making a show. You know, first season took 4 years. Second one took 5 years. Wow. क्या होता है ना, आप खुद ही पक जाते हो. You know, you want freshness, you want something new for yourself. Right. Because just the thought of going back to the same thing, same place, doing the same thing with the same set of characters, now trying to milk what people had liked in the first season, which is just it's a fool's attempt. You know, there's no point in that. So I would rather, you know, when I'm approaching something new, my thought is यार इसमें और 4 साल लगने वाले हैं. Yeah. कुछ नया करते हैं. At least For you also तो it's खुद से तो बोर नहीं हो जाओगे आप. You know. बिल्कुल. When you're going on the set again for season 2, will you watch season 1 to just see mannerisms or things like that, or Few spots, few scenes और few specific things जो कि जब सीजन 2 पढ़ रहे होते हो तो आपको कुछ चीजें ऐसी लगती है कि ओह ये कंटिन्यूएशन हो सकता है उस इमोशन का जो यहाँ आ रहा है. For example, if there's a relationship with the son, Sid, the last moment when they were together, Right. and now because of the time lapse, yeah, पर ऑडियंस के लिए वो 2 साल नहीं दिखे रिलेशन, हमें अपने उस एक जेस्चर से ही बताना है कि ये अच्छा 2 साल हो चुके हैं इस रिलेशनशिप को. नाउ इट्स वे मोर हेल्दियर और व्हाटएवर यू से, ऐसे ऑन जर्नी. तो वो उस तरह के मोमेंट्स देखने के लिए कि लास्ट जब मैंने सिड को देखा था तो क्या फील था, और लास्ट में जब अंसारी को छोड़ने गया था इंटरव्यू पे तो क्या किस मोड, वो बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स जो कि जब आप पढ़ रहे होते हो सीजन 2 तब वो आपको रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं कि अच्छा हाँ ये इसका लास्ट मोमेंट क्या था. right, fair enough. उस तरह के. So just for that, great to always hear about the process, and of course the story. Can't wait to watch it. Thank you so much. Thank you Thank you so भाई.